ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ 3 ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਦੈਨ EMF ਆਫ ਸੈੱਲ, ਦੈਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸੈੱਲ ਔਰ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਬਟ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, EMF, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬੇਟਾ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਆ ਅਤੇ 97% ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ CBSE ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਐਂਡ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਔਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਟਾ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਲੀਅਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਅਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ EMF। ਠੀਕ ਹੈ, EMF ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੀਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਸੈੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, E=E0 RT/NF natural log of 1/concentration of metal ions। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, E ਹੈ ਕੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ E ਕੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਟਰਮਸ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ E standard -RT/NF natural log of 1/mn+। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ E ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਐਟ ਐਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ।
ठीक है। तो ई की होगा अपने को इलैक्ट्रोड पोटैंशियल होनी आ अंडर नॉर्मल कंडीशनस और एट एनी कंसनट्रेशन, जां इलैक्ट्रोड पोटैंशियल की जगह ते वर्ड EMF भी कहा जाता, मोस्टली न्यूमैरिकल्स के विच तुहानूं EMF वर्ड जां इलैक्ट्रोड पोटैंशियल, ठीक है, दोवें वर्ड्स यूज़ होणगे बेटा। तो EMF और इलैक्ट्रोड पोटैंशियल अंडर नॉर्मल कंडीशनस होणगियां जां फिर कह लो भी किसी भी कंसनट्रेशन दे, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट देखो ई स्टैंडर्ड, ई नॉट की अगर जे इट इज़ ऑल्सो इलैक्ट्रोड पोटैंशियल और EMF बट डिफरेंस की आ गया थे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशनस। हुण अंडर स्टैंडर्ड कंडीशनस किहड़ी होणगे बेटा? स्टैंडर्ड कंडीशनस मतलब कि जिथे अपने कोले फिक्स टैंपरेचर होवे 298 कैलविन, ठीक है, तो 1 बार की होवे रजे प्रैशर, तो अपने कोल की होणगियां स्टैंडर्ड कंडीशनस। कंसनट्रेशन कितनी होवे 1 मोलर, ठीक है। तो अगर रिएक्शन दिया ए कंडीशनस ने तो उस टाइम के उत्ते ई स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करांगे आपां, मतलब इलैक्ट्रोड पोटैंशियल जां EMF स्टैंडर्ड कंडीशनस अगर ये होणगे फिर आपां ई नॉट यूज़ करांगे, ठीक है। बट जिहड़ा ई आगा ये किसी भी कंडीशनस उत्ते मतलब किसी भी कंसनट्रेशन उत्ते आपां ई वर्ड यूज़ करांगे, मतलब इलैक्ट्रोड पोटैंशियल यूज़ करांगे। क्लीयर है पुत्तर? उस बाद नैक्सट आर की है जी अपने कोल, व्हाट इज़ द आर की अगर अजे गैस कांस्टेंट, आर की है पुत्तर गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होंगी हैगी, कांस्टेंट है तो 8.314 जाउल पर कैलविन पर मोल, ओके। नैक्सट वन इज़ द एफ की है जी अपने पिछले लैक्चर दे विच कीता सीगा, ठीक है। एक लैक्चर इस तो पिछे जिहड़ा अपने कीता उस दे विच अपने पढ़िया सी फैराडेज लॉ दे विच तुहानूं दस्सिया सीगा फैराडे कांस्टेंट। तो फैराडे कांस्टेंट की हुंदा? चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, तो उसकी वैल्यू कितनी आई सी बेटा? 96500 कूलम, ठीक है, 96,500 कूलम। क्लीयर है बेटा? तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहूगी, ओके। दैन उस बाद नैक्सट क्या रहा एन की है जी, एन इज़ द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड या ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग कैमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो एन की होगा इत्थे अपने कोले नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कि किन्ने इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। दैन उस बाद नैक्सट अपने को MN की आ गया जे, MN हुण तुहानूं पता भी स्केयर ब्रैकेट दे विच हमेशा की हुंदी अपने को कंसनट्रेशन ऑफ मेटलाइन, किसी भी आयन की कंसनट्रेशन हो सकती है। क्लीयर है जी? तो देखो अपने को सिंपल इक्वेशन हैगी नर्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ द E इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड माइनस RT अपॉन NF नैचुरल लॉग ऑफ 1/mn प्लस कंसनट्रेशन ऑफ mn प्लस, ठीक है। मतलब जिमें Cu2 प्लस होंदा बेटा, Zn2 प्लस होंदा, Ag प्लस होंदा, तो वो वाली मैटल की कंसनट्रेशन दी हुई है, ठीक है। हुण समझ लगे ना? तो ई की है इलैक्ट्रोड पोटैंशियल जां EMF कित्थे? अंडर नॉर्मल कंडीशनस से, ठीक है। ई स्टैंडर्ड की आ इलैक्ट्रोड पोटैंशियल जां EMF आ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशनस, ओके। एन की है नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होणगे, एफ फैराडे कांस्टेंट ते MN की है कंसनट्रेशन। हुण देखो बेटा ये क्वेश्चन के कुछ वैल्यूज़ की ने कॉन्सटेंट ने जिहड़ियां हर न्यूमैरिकल दे विच सेम रहनियां ने, तो अगर आप वैल्यूज़ पुट कर दी तो इहनूं आपां होर सिंपलीफाई कर सकते हैं फॉर्मूले नूं। आर की वैल्यू पुट कर देने 8.314, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देने बेटा इत्थे आपां, ठीक है। नैचुरल लॉग नूं अगर आपां लॉग दे विच कन्वर्ट कर देने तो देखो अपने कोले नैक्सट इक्वेशन की बन के आनी आ, तो समझो रही ध्यान नाल। बेसिकली एक फॉर्मूला तुहानूं पता होगा नैचुरल लॉग ऑफ एक्स नूं अगर आपां लॉग ऑफ एक्स दे विच कन्वर्ट करना होवे तो आपां नूं 2.303 दे नाल की करना पैंदा? मल्टीप्लाई करना पैंदा। तो वही चीज़ आ मैं इत्थे नैचुरल लॉग नूं कन्वर्ट कर रही हूँ बेटा लॉग दे विच, तो मैनूं 2.303 नाल मल्टीप्लाई करना पैना, ठीक है। तो इक्वेशन देखो किवें बन के आनी है, E इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड माइनस R की वैल्यू कितनी पुट कर दी बेटा आपां 8.314
क्लीयर। तो टैंपरेचर कितना हमेशा मोस्टली जिहड़ियां रिएक्शनस होंदियां ने नॉर्मल टैंपरेचर ते दैट इज़ द 25 डिग्री सैल्सियस उत्ते होंदियां ने जां फिर उहनूं आपां 298 कैलविन च कन्वर्ट कर लैंदे आ। ठीक है। तो नैचुरल लॉग नूं आपां लॉग दे विच कन्वर्ट करना बेटा तो 2.303 दे नाल की करांगे मल्टीप्लाई करांगे। ओके। दैन उस बाद एन नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर यह रजे रिएक्शन ते डिपेंड करदा कि अपने कोल रिएक्शन किद्दां दी प्रोसीड हो रही है जिस दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या गेन हो रहे हैं। ठीक है। एफ की है फैराडे कांस्टेंट यदी वैल्यू 96500 आ गई। दैन उस तो बाद लॉग क्योंकि अपने नैचुरल लॉग नूं लॉग च कन्वर्ट कर लिया 1 बाय कंसनट्रेशन ऑफ एनी मैटल आइंस। ओके। हुण इनू सारे नूं सिंपलीफाई करके जो तुहाडे कोल इक्वेशन आउणी आ दैट इज़ द ई स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 1 बाय एम एन प्लस कंसनट्रेशन ऑफ। ठीक है। दिस इज़ द नर्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल सोल्यूशन। ठीक है। तो ये है बेटा ये आप अगे यूज़ करनी है इक्वेशन नमैरिकल्स दे विच। ठीक है। तो फॉर्मूला यूज़ करना है बेटा नर्स्ट इक्वेशन किन्ना वास्ते आ 4 सिंगल सोल्यूशंस 4 सिंगल सोल्यूशंस। ओके बेटा। हुण देखो अगर सोल्यूशंस डबल होण जिवें इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच की सीगा अपने कोल सोल्यूशंस डबल सीगे 2 सैल सी ना अपने कोल एक ऑक्सीडेशन हाफ सैल एक रिडक्शन हाफ सैल तो उहदे वास्ते नर्स्ट इक्वेशन नूं जस्ट सेम रहनी आ E इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ एनोड कंसनट्रेशन divided by log of cathode concentration, anode concentration divided by log of cathode concentration. Again most important equation for double solutions किन्ना लिएगी बेटा है 4 डबल सॉल्यूशंस तो आप ये 2 फॉर्मूले यूज़ करके ही अगे नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स करने ने तो फॉर्मूले तुहानूं पहला अच्छी तरह लर्न होने चाहिए ने बेटा। सिंगल सोल्यूशन लिए अगर तुहानूं एक सोल्यूशन की गल की जा रही है तो जस्ट आप इत्थे लॉग ऑफ 1 बाय कंसनट्रेशन ऑफ मेटल आइंस। ठीक है। अगर डबल सोल्यूशन की गल की जा रही है तो एनोड कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोड कंसनट्रेशन। ठीक है जी। तो कई बुक्स दे विच बेटा इनू ऑपोजिट रिप्रजेंट किया जाता है एनोड की जगह पर की लिखा जाऊगा कैथोड बट कैथोड की जगह पर की लिखा जाऊगा एनोड बट इत्थे जिहड़ा सिंबल आ नैगेटिव की जगह पर की हो जाना पॉजिटिव हो जाना। ठीक है। तो तुसी पजल नहीं होना है कई बार तुहानूं इस तरह भी फॉर्मूला देखने मिलूगा कैथोड ओवर एनोड बट बच्चे इस गल ते ध्यान नहीं देंगे कि इत्थे नैगेटिव की जगह पर की आ पॉजिटिव आ। ठीक है जी। तो तुसी इक्को ही फॉर्मूला लर्न रखना। ठीक है। ऐदा पजल नहीं होना कि एनोड उपर आ जां कैथोड उपर आ प्लस आ माइनस। ठीक है। तो बस इक्को ही फॉर्मूला पॉपुलर फॉर्मूला जो तुसी ने याद रखना इत्थे माइनस। ठीक है। एनोड कंसनट्रेशन अपॉन कैथोड कंसनट्रेशन अपॉन कैथोड कंसनट्रेशन। अगर तुसीं इहनूं रिवर्स कर रहे हो फिर इत्थे प्लस कर लियो समझ लग गई रजे। ठीक है। तो ये अपने कोल किहदी लई आ गई नर्स्ट इक्वेशन किन्ना दे लई आ गई बेटा 4 डबल सोल्यूशंस। ओके। हुण उस तो बाद आपां नैक्सट देखो मैं तुहानूं पहला सारे थोड़े छोटे जो न्यूमेरिकल्स यूज़ होणगे फॉर्मूले यूज़ होणगे बेटा पहले मैं वो दस रही तुहानूं फिर आपां इहदे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन इसका भी न्यूमेरिकल आंदा तो पहला समझ लो इनू। ठीक है। कि फॉर्मूला किवें बन के आऊगा बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन। तो हुण देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम दे विच होवे। ठीक है। सपोज अपने कोले जिंक ते कॉपर आइंस की रिएक्शन हो रही है बेटा तो इत्थे जिंक की की हो जानी है ऑक्सीडेशन जिंक ने अपने इलैक्ट्रॉन लॉस करते क्लीयर। दैन उस तो बाद कॉपर ने इलैक्ट्रॉन गेन कर ली क्लीयर है बेटा। हुण देखो अगर आपां ये एक्वस फॉर्म दे विच लिखिया मैं हुण इसी आपां नर्स्ट इक्वेशन लिखनी आ। ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन किद्दां लिखांगे E इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन N
लॉग ऑफ किद्दां लिखते होंगे सी बेटा आपां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर तुहानूं +1 का इक्विलिब्रियम चैप्टर याद आ तो उत्थे आपां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किद्दां लिखते सी प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन। तो प्रोडक्ट्स की ने कि बेटा अपने कोल इत्थे जिंक आयन्स एक्वस फॉर्म च ने बेटा तो कॉपर आयन्स सॉलिड फॉर्म च ने डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की ने कि पुत्र अपने कोल जिंक आयन्स सॉलिड फॉर्म के कंसनट्रेशन नूं स्केयर ब्रैकेट दे नाल लिखना तो इधरों आके लिख रही है मैं कॉपर आयन्स किहड़ी फॉर्म च ने एक्वस फॉर्म च। क्लीयर है जी। हुण देखो जी कि जदों अपने कोले सॉलिड फॉर्म दे विच सॉलिड जां लिक्विड फॉर्म दे विच अपने कोले कंसनट्रेशन होवे तो चेंज नहीं हुंदी तो उत्थे सॉलिड जां लिक्विड फॉर्म दे विच कंसनट्रेशन सेम रहिंदी है जां कह लो कॉन्सटेंट रहिंदी आ तो उस टाइम दे उत्ते इन केस ऑफ सॉलिड जां लिक्विड फॉर्म उत्थे आपां कंसनट्रेशन नूं की मन के चलते हैं 1। ठीक है तो कॉपर सॉलिड की कंसनट्रेशन 1 होगी तो जिंक सॉलिड की कंसनट्रेशन की दे कोल आ गई 1 दे कोल आ गई। ठीक है तो आ भी 1 हो गया बेटा अपने को कॉपर सॉलिड की कंसनट्रेशन भी 1 यूनिटी मान ली अपने तो ए दी कंसनट्रेशन भी की रहेगी यूनिटी तो सिर्फ अपने को की रह गए जिंक आयन्स की कंसनट्रेशन तो कॉपर आयन्स की कंसनट्रेशन एक्वस फॉर्म क्योंकि एक्वस फॉर्म ही कंसनट्रेशन चेंज होंदी है सॉलिड फॉर्म जी कंसनट्रेशन आ रही है सेम रही है। इत्थे तक क्लीयर आ। हुण अगे देखो जी हुण आपां नूं पता कि जदों इक्विलिब्रियम ते रिएक्शन चल रही है ठीक है रिएक्शन की होगी इक्विलिब्रियम के केस दे विच जो EMF हुंदी हैगी सैल दी ठीक है मतलब EMF हुंदा सैल दा वो की हुंदा रहे 0 ठीक है इक्विलिब्रियम के केस दे विच EMF सैल हमेशा की हुंदा 0 ठीक है तो इत्थे अपने कोले इहदी कंसनट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बन जूगा कंसनट्रेशन ऑफ जिंक आयन्स तो कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयन्स एक किस इक्वल बन जूगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे KC दे इक्वल बन जूगा। ठीक है तो KC की है अपने को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो E की हो गया बेटा 0 तो जस्ट मेरे को इक्वेशन की रहेगी पुत्र इत्थे अपने को EMF दे विच E की वैल्यू की आ गई 0 इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ KC तो तुहानूं इत्थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्मूला अपलाई करके पूछा जा सकता कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करो तो पहला तो फॉर्मूला पता होना चाहिए किवें बने रजे लॉग ऑफ KC की वैल्यू नूं कैलकुलेट करने लई न्यूमेरिकल आ सकता। ठीक है तो हुण देखो इधर आपां E स्टैंडर्ड आ तो E स्टैंडर्ड नूं आपां इक्वल टू दे इधर लै जाने तो इत्थे अपने कोल की बन जाना है दैट इज़ E स्टैंडर्ड इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ KC। ठीक है हुण उस तो बाद नैक्सट जे तुसीं लॉग ऑफ KC नूं कैलकुलेट करना तो अपने कोल की इक्वेशन रह जानी है बेटा इत्थे लॉग ऑफ KC नूं कैलकुलेट करन वेले दैट इज़ NE स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय 0.0591 इज इक्वल टू लॉग ऑफ KC इज इक्वल टू लॉग ऑफ KC। ठीक है जी तो ये बेसिस उत्ते भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है राजे तो पहले मैं सारे फॉर्मूले दस रही हूँ तुहानूं पहले आप नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला करके हटे हाँ वो न्यूमेरिकल्स करांगे। ठीक है फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं तुहानूं लॉग ऑफ KC NE नॉट अपन 0.0591 इज द फॉर्मूला। ठीक है उस बाद आप नैक्सट कर देंगे राजे नैक्सट भी आप थ्रैटिकल टॉपिक कर रहे हैं मतलब जिसे फॉर्मूला ड्राइव करांगे तो उसका भी छोटा जिहा न्यूमेरिकल आ जाता होंदा। देखो राजे गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन तो गिब्स एनर्जी दे विच बेसिकली की हुंदा हुण आपां नूं पता कि जिहड़ा इलैक्ट्रोकैमिकल सैल आ इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दा काम की हुंदा राजे इट कन्वर्ट्स कैमिकल एनर्जी इनटू इलैक्ट्रिकल एनर्जी कैमिकल एनर्जी नूं किस दे विच कन्वर्ट कर दिंदा बेटा है इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच। ठीक है हुण जिहड़ी ये इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही आ ये डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स करने वास्ते यूज़ होगी।
ठीक है। तो हुण जदों कोई भी सैल कैमिकल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट कर दिंदा, ठीक है, तो जिहड़ी इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क करन वास्ते यूज़ हुंदी है, ठीक है। तो हुण इस केस दे विच देखो राजे कि जो इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हैगी, ठीक है, वो किस से इक्वल होगी, मतलब जिहड़ा वर्क प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग इलैक्ट्रिकल एनर्जी तो किस से इक्वल होगा, इलैक्ट्रिकल एनर्जी वर्क, इलैक्ट्रिकल मतलब जो कैमिकल एनर्जी तो इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो फिर वो इलैक्ट्रिकल एनर्जी अगे वर्क करने वास्ते यूज़ होंदी आ, तो वो इलैक्ट्रिकल वर्क किस इक्वल होंदा बेटा, दैट इज़ द ई सैल इंटू क्यू, ई सैल इंटू क्यू, ठीक है। ई की है जे इत्थे अपने कोले EMF ऑफ सैल एंड क्यू की है इलैक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। तो नैगेटिव साइन का मतलब की है इत्थे अपने कोल वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि सैल कम कर रहे हैं तो सैल कम करन करके इत्थे अपने कोल की आ गया नैगेटिव साइन, बिकॉज वर्क डन बाय द सिस्टम होवे तो सिंबल की आ जाता नैगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम, दैट्स वाई तो सिंबल अपने की लिया बेटा इत्थे नैगेटिव लिया, ठीक है। तो इलैक्ट्रिकल वर्क कि होगा प्रोडक्ट ऑफ EMF ऑफ सैल एंड द इलैक्ट्रिकल चार्ज, ओके। दैन उस बाद नैक्सट देखो हुण अगर इत्थे अपने कोले क्यू की है चार्ज आ, ठीक है, चार्ज किस इक्वल होंदा गा बेटा, दैट इज इक्वल टू द n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलैक्ट्रॉन इनटू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू इट, तो क्यू किस इक्वल होंदा n इंटू एफ, ठीक है। चार्ज किस इक्वल होंदा n इज द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, एफ की होगा बेटा क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इट, मतलब जिन्होंने तुसीं फैराडे कॉन्सटेंट भी कहते हो। तो इत्थे आपां इह गल कह सकते ना कि इलैक्ट्रिकल वर्क किस इक्वल आ गया माइनस ई ऑफ सैल इंटू क्यू, किस इक्वल सीगा बेटा, क्यू इज इक्वल टू n इंटू एफ, तो क्यू की वैल्यू मैं पुट कर रही हूँ रजे n इंटू एफ, ठीक है। तो इलैक्ट्रिकल वर्क किस इक्वल आ गया अपने को, इलैक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू द माइनस NFE, किस इक्वल आ गया माइनस NFE, ठीक है। हुण अगे समझो ध्यान नाल, हुण रजे जिहड़ा है यूजफुल वर्क दे विच कन्वर्ट होगी एनर्जी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी जिहड़ा यूजफुल वर्क दे विच कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो उहनूं कहा जांदा गिब्स एनर्जी। दोबारा फिर समझो ध्यान नाल, इत्थे तक ये कंसैप्ट क्लीयर है, ठीक है। हुण समझो कोई सिस्टम आ, ठीक है, सिस्टम नूं आपां की कर रहे हैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिस्टम नूं आपां की कर रहे बेटा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एनर्जी की जिहड़ी अगे हुण ये तो है नहीं कि सारी की सारी एनर्जी अगे वर्क दे विच कन्वर्ट हो जूगी, कुछ क एनर्जी यूजफुल वर्क दे विच कन्वर्ट हो जू, ठीक है, कुछ क एनर्जी किस कन्वर्ट हो जूगी यूजफुल वर्क दे विच, कुछ क एनर्जी की हो जूगी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ साउंड, क्लीयर है जी, कुछ क एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो जदों एनर्जी आप सिस्टम नूं प्रोवाइड करते हैं तो सिस्टम कुछ एनर्जी नूं यूजफुल वर्क दे विच कन्वर्ट कर दिंदा, तो वो वाली एनर्जी जिहड़ी सिस्टम के द्वारा यूजफुल वर्क दे विच कन्वर्ट की जाए उन्होंने कहा जाता गिब्स एनर्जी। किहड़ी एनर्जी बेटा, गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी की हुंदी हैगी, ठीक है, तो गिब्स एनर्जी जानू गिब्स फ्री एनर्जी भी कहा जाता, इट इज़ द एक्सैस ऑफ एनर्जी present in the system which can converted into the useful energy, ठीक है। तो जी यूजफुल वर्क दे विच जिहड़ी अपने को एनर्जी पई हुंदी हैगी कन्वर्ट हो जाती है, उन्होंने गिब्स एनर्जी कह दें। इसका मतलब इत्थे अपने को W की है अपने को यूजफुल वर्क दे विच कन्वर्ट हो रही है एनर्जी, तो मैं इनू गिब्स एनर्जी कह सकती हाँ। तो इनू आपां W इलैक्ट्रिकल नूं आपां की लिख रहे हैं डेल्टा G, ठीक है, डेल्टा G मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि ये यूजफुल वर्क दे विच कन्वर्ट होगी। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द एक्सेस एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल वर्क इज कॉल्ड द गिब्स एनर्जी। तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE, ठीक है जी। जे फिर तुहानूं स्टैंडर्ड फॉर्म दे विच पूछा जाए तो बस G स्टैंडर्ड इज इक्वल टू माइनस NF, फिर इत्थे भी आपां किहड़ी कंडीशनस रख लांगे, स्टैंडर्ड कंडीशनस रख लांगे, ठीक है जी। दैन हुण ये सारिया चीज़ां ना नोट करी जाओ, अगे न्यूमेरिकल्स दे विच सारा कल्ले कल्ला फॉर्मूला ते कल्ले कल्ले टर्म्स यूज़ होणगियां, ठीक है जी। हुण देखो अगर डेल्टा G की होवे अपने कोले नैगेटिव, इफ डेल्टा G इज़ नैगेटिव तो रिएक्शन की हुंदी हैगी,
रिएक्शन इज़ स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का तुहानूं मीनिंग पता होना चाहिए। लास्ट ही लैक्चर दे विच मैं दस्सिया सीगा कि स्पॉन्टेनियस जां फिजिबल मतलब जिहड़ियां रिएक्शनस अपने आप होंदियां ने, ठीक है। तो तुहानूं एक सैल दी रिएक्शन दे दित्ती जाऊगी, पूछा जाऊगा जी दसो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हैगी आ जां नहीं। तो उस लई तुसीं डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। अगर तो आंसर तुहाडा नैगेटिव आ रहा तो तुसीं कहोगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आ। इफ डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव, इफ डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव दैन रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। दैन रिएक्शन की होगी बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस। दैन रिएक्शन इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, तो हुण आपां इहनूं डेल्टा जी नूं इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट के थ्रू भी आपां कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आ चीज़ क्लीयर है ना। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। जब तुहानूं न्यूमैरिकल दे विच पूछा गया ऑल्सो कैलकुलेट द गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला लगाना तुसीं ने -NFE। ओके बेटा, जे स्टैंडर्ड कंडीशनस ने तो स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला लगा दोगे। अगर पूछा गया रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है तो तुसीं आंसर तो प्रडिक्ट करोगे कि अगर वैल्यू नैगेटिव आ रही है तो स्पॉन्टेनियस आ, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो रिएक्शन की, अगर वैल्यू नैगेटिव आ रही है तो स्पॉन्टेनियस, अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है स्टूडेंट्स, हुण देखो नैक्सट आप कर देंगे इट कैन बी ऑल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट। ठीक है, तो गिब्स एनर्जी का एक तो फॉर्मूला है बेटा डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE। ठीक है, तो एक फॉर्मूला की है बेटा डेल्टा जी स्टैंडर्ड इज इक्वल टू -RT नैचुरल लॉग ऑफ KC। ठीक है, ये भी तुसीं +1 पढ़िया होया फॉर्मूला। तो इत्थे आपां इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट तो भी इनू कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर तुहाडे कोले E ऑफ सैल नहीं दिता होया तो डेल्टा जी तुसीं किद्दां कैलकुलेट करना गा। डेल्टा जी ये अपने कोल स्टैंडर्ड कंडीशन दे विच आ जाऊगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू अगर आपां इनू नैचुरल लॉग नू खत्म करिए तो 2.303 दे नाल मल्टीप्लाई कर देंगे आपां इसनू बेटा। ठीक है, तो 2.303 RT log of KC, RT log of KC। क्लीयर है बेटा। तो गिब्स फ्री एनर्जी नू या तो तुसीं -NFE थ्रू दे कैलकुलेट कर सकते हो अगर तुहानूं EMF पता। अगर तुहानूं इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट दिता होए तो तुसीं ये फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये सीगा अपने कोले गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी याद रखियो अगर अपने कोले पॉजिटिव आ जां नैगेटिव आ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आ जां नॉन स्पॉन्टेनियस आ, वो चीज़ क्लीयर होनी चाहिए तुहानूं। हुण आपां नैक्सट स्टार्ट करन लगे बेटा न्यूमैरिकल्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जिन्ने भी फॉर्मूले सीगे मैं तुहानूं सारे दसते। ठीक है, आपां न्यूमैरिकल्स स्टार्ट करन लगे बेटा किस दे बेसिस उत्ते, नर्स्ट इक्वेशन दे बेसिस उत्ते। तो देखो न्यूमैरिकल्स ऑफ EMF। ठीक है, गिब्स एनर्जी दे न्यूमैरिकल करांगे नाल नाल आपां गिब्स एनर्जी ते नाल होर किहड़ा आपां ने ड्राइव किया फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट। इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट तो ये सारे न्यूमैरिकल इंटरलिंक्ड ने बेटा एक दूजे नाल। तो अगर किसी रिएक्शन दे विच तुहानूं EMF पूछा गया तो हो सकदा नाल तुहानूं गिब्स एनर्जी पूछ लैण। ठीक है, जां फिर तुहानूं इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट पूछ लैण। तो एक स्टैप तो बाद जस्ट अगला स्टैप भी करना तो उहदे नाल दे ही रिलेटेड न्यूमैरिकल्स ने। ठीक है, पहले मैं तुहानूं बहुत सिंपल न्यूमैरिकल करवाउणी आ। देखो फर्स्ट न्यूमैरिकल करदे हैं बेटा आपां कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल, calculate the reduction potential for half cell reaction, at 298 Kelvin, where the reaction is Ag positive plus electron, it gives Ag। ठीक है, तो Ag प्लस इज इक्वल टू 0.1 मोलर। ठीक है, तो ई स्टैंडर्ड की वैल्यू दी हुई है बेटा Ag प्लस Ag दैट इज़ 0.80 वोल्ट। ठीक है, हुण समझो थोड़ा जिहा ध्यान नाल बेटा की कैलकुलेट करने को कहा गया तो रिडक्शन पोटेंशियल। देखो मैं तुहानूं समझाया सीगा कि अपने कोल इलैक्ट्रोड पोटेंशियल दियां अगे दो टाइप्स हुंदियां ने, एक हुंदा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल,
अगर ऑक्सीडेशन हो रही होवे ते एक हुंदी आ रिडक्शन पोटैंशियल अगर रिडक्शन हो रही हो इलैक्ट्रोड की। ठीक है, याद करो पिछला लैक्चर तो उस अच्छी तरह समझाया हुआ ऑक्सीडेशन पोटैंशियल तो रिडक्शन पोटैंशियल। इलैक्ट्रोड पोटैंशियल के दो पार्ट ने बेटा। हुण इस की होया कि तुहानूं जां तां इत्थे कैलकुलेट ऑक्सीडेशन पोटैंशियल कह सकते हैं या फिर कैलकुलेट रिडक्शन पोटैंशियल कह सकते हैं। ठीक है, बट ज़्यादातर जिहड़ा वर्ड यूज़ किया जाता रिडक्शन पोटैंशियल यूज़ किया जाता क्योंकि IUPAC के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग IUPAC ये तो जानते होंगे तुसीं IUPAC। ठीक है जी, इस दे अकॉर्डिंग इंटरनैशनल यूनीयन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड कैमिस्ट्री। ठीक है, इस दे अकॉर्डिंग बेटा की है कि ज़्यादातर रिडक्शन पोटैंशियल वर्ड प्रैफर किया जाता। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन पोटैंशियल पूछा जाऊगा तो बस वो इसका रिवर्स होंदा, मतलब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो इसकी नैगेटिव च हो जाती है। ठीक है, होर कोई ज़्यादा इशू नहीं है, इस ज़्यादा पजल होने की तो जरूरत नहीं हैगी। रिडक्शन पोटैंशियल कहा गया मतलब इलैक्ट्रोड पोटैंशियल कहा गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटैंशियल कहा गया तो भी मतलब इलैक्ट्रोड पोटैंशियल कहा गया। बस इन्होंने दोनों का सिर्फ एक चीज़ का फर्क है कि ये वैल्यू पॉजिटिव च तो नैगेटिव च हो जू, अगर ये पॉजिटिव है तो यह नैगेटिव च हो जूगी। ठीक है, होर इन्हों का कोई खास फर्क नहीं हैगा। तो फॉर द हाफ सैल रिएक्शन 298 कैलविन तो देखो रजे ਆਪਾਂ ਨੂੰ इलैक्ट्रोड पोटैंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करने ਨੂੰ कहा गया। ठीक है, मतलब E इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग ऑफ इको ही सैल दिता हुआ है ना एक सोल्यूशन वास्ते ही। सब तो स्टार्टिंग तो याद करो मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखाया सीगा MN+। ठीक है, इसकी कंसनट्रेशन तो इत्थे अपने को मैटल किहड़ी है ग्रेज सिल्वर प्लस की कंसनट्रेशन। ठीक है, तो हम देखो E स्टैंडर्ड तो है अपने को रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू दी हुई है 0.80 वोल्ट। ठीक है जी, एक की वैल्यू दी हुई होंगी है रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू दी हुई होंगी है प्लस 0.80 वोल्ट। तो E स्टैंडर्ड की वैल्यू तो आप इत्थे पुट कर देंगे कितनी अपने को 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो अपने की पता करना रिडक्शन पोटैंशियल किसी भी कंसनट्रेशन ते याद करो मैं तुहानूं की कहा सीगा ई की हुंदा रिडक्शन पोटैंशियल जां EMF एट एनी कंसनट्रेशन। तो इत्थे अपने को कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है बेटा 0.1 मोलर। ठीक है, तो अपने यही कैलकुलेट करना कि बेटा इत्थे ई दी कितनी ई अपने कैलकुलेट करना तो 0.80 अपने फॉर्मूले दे विच पुट करता। N की है इसका नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर, किन्ने इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं मतलब रिएक्शन दे विच इक्को इलैक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये की आ जाना अपने को E इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ 1/0.1। तो हुण आपां इहनूं किवें लिख सकते हैं लॉग 1/0.1 की आ जाएगा बेटा 1/10। तो 1/10 ये ऊपर चला गया तो अपने को की रह जाना है log 10 की रह जाना पुत्र log 10। हुण तुहानूं पता कि log 10 हमेशा किस दे इक्वल हुंदा log 10 इज इक्वल टू 1। तो log 10 किस दे इक्वल आ जाऊगा 1 दे इक्वल आ जाना। क्लीयर, तो आपां इहनूं सारे नूं सिंपलीफाई करांगे तो 1 तक खत्म ही है रजे। तो E इज इक्वल टू 0.80 माइनस 0.0591 तो इनू सबट्रैक्ट करके कितना आ गया अपने को 0.74 वोल्ट। ठीक है जी, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्लीयर है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल करवाया मैं पहले फॉर्मूले के बेसिस उत्ते ही करवाया। ठीक है, तो ये अपने रिडक्शन पोटैंशियल की वैल्यू नू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है जी, तो इत्थे तुहानूं मैं तुहानूं पहला भी दस रही हूँ कि आपां रिडक्शन पोटैंशियल कहा जाए। ठीक है, जां फिर तुहानूं इत्थे EMF भी कह सकते हैं क्योंकि ये और एनी कंसनट्रेशन एट एनी कंसनट्रेशन। ठीक है जी, जो तुहानूं स्टैंडर्ड कहा गया फिर तुसीं स्टैंडर्ड पता करोगे, जो तुहानूं EMF जां रिडक्शन पोटैंशियल कहा गया एट एनी कंसनट्रेशन दे फिर तुसीं E कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो हुण रजी नैक्सट न्यूमेरिकल देखो न्यूमेरिकल नंबर 2 सैकेंड न्यूमेरिकल द मैजर्ड EMF at 25 degrees Celsius for cell reaction is 1.3 volt. Calculate E standard for the cell.
कैलकुलेट ई स्टैंडर्ड फॉर द सैल। हुण ध्यान नाल देखो की कह रहे ने कि अपने कोई सैल की रिएक्शन आ, मैं रिएक्शन लिख रही हाँ इत्थे जिंक प्लस इलैक्ट्रोकैमिकल सैल आ बेटा, जिस दे विच रिएक्शन अपने कोल किहड़ी हो रही है कि जिंक प्लस कॉपर आयनस कंबाइन हो के, ठीक है, अपने कोल की बन रहे ने कॉपर मैटालिक कॉपर प्लस जिंक आयनस। क्लीयर आ। तो इत्थे अपने कोल जिंक की की हो रही है ऑक्सीडेशन तो कॉपर की की हो रही है रिडक्शन। ठीक है, तो अपन की कैलकुलेट करने को कह रहे हैं ई स्टैंडर्ड। तो हम देखो स्टैंडर्ड कंडीशन से पता करने को कह रहे हैं बेटा, तो ई इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ की फॉर्मूला सीगा पुत्र एनोड कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय कैथोड कंसनट्रेशन। क्लीयर है जी। तो मैं बहुत टिप्स दस रही हूँ बेटा इत्थे, ठीक है, तुसीं किद्दां फाइंड आउट कर सकते हो भी किहड़ी वैल्यू की दी हुई हैगी। देखो द मैजर्ड EMF एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर रिएक्शन इज 1.3 वोल्ट कैलकुलेट द ई स्टैंडर्ड। मतलब ई स्टैंडर्ड तो आपां ने कैलकुलेट करनी आ, तो आपां नूं ई दी हुई है, मतलब EMF दी हुई हैगी कितनी 1.3 वोल्ट, तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 1.3 वोल्ट। क्लीयर। तो ई स्टैंडर्ड आपां ने की करना कैलकुलेट करना। ठीक है जी। माइनस 0.0591 एन की हुंदा नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कॉपर तो जिंक। जिंक ने देखो किन्ने इलैक्ट्रॉन लॉस किए 2, कॉपर ने किन्ने इलैक्ट्रॉन गेन कर ले 2 इलैक्ट्रॉन्स। तो इत्थे अपने को की आ गया एन की वैल्यू 2 लॉग ऑफ एनोड कंसनट्रेशन अपॉन कैथोड कंसनट्रेशन। हुण मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थोनू पता होना चाहिए भी ये चो किहड़ा एनोड आ ते किहड़ा कैथोड आ। ठीक है, हुण जिंक नूं देखो तुसीं जिंक रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट वाल जाते हुए की चार्ज आ रहा अपने कोले प्लस का चार्ज। ठीक है, तो देखो रहे इस केस के विच अपने कोले इहदी वैल्यू 0.1 मोलर है बेटा। ठीक है, तो देखो इत्थे अपने कोले जिंक की रिएक्शन लिख रही है, पहला मैं जिंक इट लॉसेस 2 इलैक्ट्रॉन्स, जिंक 2+ बन रहा। ठीक है, तो कॉपर Cu2+ तो 2 इलैक्ट्रॉन गेन किते की बन गया Cu बन गया। ठीक है, रिएक्शनस लिख रही है मैं। हुण लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन की हुंदा दसो ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हुंदी आ तो इलैक्ट्रोड किहड़ी हुंदी आ ओह एनोड एनॉक्स दस्सिया सी ना। तो जिंक अपने कोल की है बेटा एनोड, जिंक की है रजे एनोड। ठीक है, गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन की हुंदा रिडक्शन, जिथे रिडक्शन होंदी है तो वह हमेशा की होंदी है कैथोड रैड कैट। कॉपर की है इत्थे अपने कोल कैथोड। ठीक है, तो जो अपने कोल जिंक दियां वैल्यूज़ दित्तियां हुई ने, ठीक है, वो अपने कोल एनोड दियां वैल्यूज़ ने, तो जो कॉपर दी वैल्यूज़ दी हुई ने कैथोड दी वैल्यूज़ ने। तो एनोड की कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है बेटा, मतलब जिंक की कंसनट्रेशन 0.1 मोलर। ठीक है जी। तो कैथोड की कंसनट्रेशन कितनी दी है बेटा 1.0 मोलर। क्लीयर है। हुण उस तो बाद की करना तुसीं ने इत्थे लॉग नूं सिंपलीफाई करना। तो लॉग नूं आपां किद्दां सिंपलीफाई करांगे बेटा, फस्ट ऑफ ऑल 1 बाय ये अपने कोल की बन जाना 0.1 की बन जाना बेटा इत्थे अपने कोल 1/10 1/10 ये तो 1 ही सीगा। ठीक है, तो की रह गया अपने कोल 1/10 1/10 नूं आपां किवें लिख सकदे हां 10 की रेज़ टू पावर -1। ठीक है, हुण 10 की रेज़ टू पावर -1 आ तो देखो फॉर्मूला तुहानूं पता होना चाहिए लॉग 10 की रेज़ टू पावर x किस दे इक्वल हुंदा x log 10। ठीक है, पावर अगे आ जाती होंगी आ, तो ये मेरे को log 10 की रेज़ टू पावर -1 आ, तो इस दे विच पावर की हो जूगी अगे आ जूगी। ठीक है, मतलब -1 log 10 रह जाना इत्थे। तो अपने को की बन के आ जाना बेटा नैक्सट 1.3 ई स्टैंडर्ड। तो यह जो log 10 की रेज़ टू पावर -1 सीगा ये अगे आ गया माइनस माइनस की हो गया प्लस 0.0591 नूं तुसीं 2 ते डिवाइड करोगे तो की बन जूगा 0.02955 log 10 की बन जूगा बेटा log 10। हुण log 10 पता तुहाडे कोल की हुंदा 1 हुंदा, तो log 10 की वैल्यू की आ गई 1। तो इत्थों ई स्टैंडर्ड की वैल्यू की आ जानी अपने कोल log 10 किस दे कोल आ जूगा log 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 बन गया। तो ई स्टैंडर्ड अपने कोल कितना आ जाना बेटा 1.27 वोल्ट। क्लीयर आ।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਬਲ ਸਾਲਟ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਨੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਬਾਈ 1 ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ, 2 ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ।